آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آنریبل جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آج یعنی 31 دسمبر کو کرائے جائیں۔ بلدیاتی الیکشن کرانے کا یہ جو آرڈر ہے یہ کل شام تقریباً 5 بجے کے قریب یعنی مغرب کے ٹائم پہ سنایا گیا۔ عدالت کا فیصلہ ہماری سار آنکھوں پہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ عدالتوں کے احترام اور ان کے فیصلے ماننے کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے، لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 20 سے 25 افراد کا عملہ، جن میں آپ کی سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد، پریزائڈنگ آفیسر، سب پریزائڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں، 20-25 لوگ ایک پریزائڈنگ آفیسر پہ، تو 20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے، جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ہے، اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں۔ وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو، جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے، جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات، پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل، پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اسی لیے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آگے عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منوً عمل کرایا جائے گا۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور سٹیٹس کیا ہے اسلام آباد میں؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، لوکل باڈیز ایکٹ 2015۔ آج دو باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن، جو ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 میں کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا، اس کی اثر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہیں 125 یونین کونسلوں کے اوپر۔ اور یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے، جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے، اور 125 یونین کونسلز میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015 اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے، اسے سینٹ پاس کر چکی ہے۔ دو باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا، وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کونسلز 125 ہوں گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا، پورے ضلع پر وہ الیکشن ہوگا۔ یہ دو امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں۔ اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے، صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اسے رکھ سکتے ہیں۔ 4-5 دن گزر چکے ہیں، 5-6 دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، گورنمنٹ نہیں کہتی۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج چھوڑ دیں، یہ جو بھی ہے یہاں پہ ساری لیٹیگیشن ہوئی ہے، کل جو فیصلہ ہوا، جو 24 دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا،
अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने, और वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा। बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक मनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं? जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनिट काउंसिल्स हैं उनकी हल्का बंदी भी असर नो होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फात चोई साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनिट काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर, अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नमज़ीद जमा कराए और जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनिट काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनिट काउंसिल्स डिफेंस एरिया की हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनिट काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तर इंतजाम उनके मुकम्मल हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है, मुझे अब ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बल्दियात में, इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था। तो ये एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है? वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। PTI की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं इनसे पूछता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत ख़त्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने ये इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। जब इलेक्शन शेड्यूल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है।
उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के ज़रिए सेट असाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बल्दियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सके हैं। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें। आज आप इदारों को पहले तो गालियाँ देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूँ इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया। पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को PTI हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले आपने। वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, वो यूनिट काउंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे, आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज़्ज़त बल्दियाती इदारों के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरा प्रोपेगेंडे के ज़रिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं कि हम तो बल्दियाती इदारों के बहुत हक में हैं? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की। आपने वहाँ पे ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए। और जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने बल्दियाती नुमाइंदों को और इदारों को ना बहाल होने के बावजूद ना चार्ज दिया और ना उसके बाद आपने वहाँ पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा, जनाब हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं बल्दियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर 4 साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की है जिसकी बुनियाद पे ये लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर? इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर? वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फ़रेब को, उनके मकर को, उनकी दोहरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि हमारी सियासत अगले चंद दिन नहीं तो चंद महीने की है। इससे ज़्यादा वो अब सर्वाइव करने वाले नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इस्लामाबाद की आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, 4 साल तक उनको लटकाई रखा, एक प्रोजेक्ट आप मुकम्मल नहीं कर सके। रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट आपने की हो, इस्लामाबाद सिटी में कोई डेवलपमेंट आपने की हो? हाँ, अगर आपने किया तो इस्लामाबाद में जो हमारे कोई ग्रीन पार्क्स हैं, जैसे ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग कर दिया, जगह जगह आपने बोर्ड अवेज़ा कर दिए। इसके अलावा आप कोई खिदमत की सियासत यहाँ नहीं कर सके। हमने अपने अल्लाह ताला के फजल से अपना जो हमारे दौरे हुकूमत है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये इलेक्शन हुए थे 2015 में, हमारे उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हुए, उन्होंने अपने दौर में डिलीवर किया। हमने कोई 150 से ज़्यादा उस वक्त भी देहात में सुई गैस दी, पानी के प्रोजेक्ट्स दिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनी, कारपेटिंग हुई। उसके अलावा कई और ऐसे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जो CDA के डिपार्टमेंट से किए। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो मशहूर है शहबाज स्ट्रीट के नाम से, उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए जो मंसूबे, जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूँगा पूरा प्रोग्राम,
اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کا رورل ایریا، اسلام آباد کا سٹی ایریا، ان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہماری اس گورنمنٹ کے پاس کیا ہے۔ مسائل بالکل مختلف ہیں، جو مسائل بارہ کے ہیں، چراغ کے ہیں، روات کے ہیں، شکریال کے ہیں، وہ مسائل G10 کے نہیں ہیں، F6 کے نہیں ہیں، G6 کے نہیں ہیں، لیکن شہروں کے مسائل بہرحال موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک کمپریہنسو پلان لے کے آئیں گے۔ لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کا بھی احترام ہے، ہمیں عدالتی فیصلوں کا بھی احترام ہے، اور ہم آئندہ بھی، پہلے بھی ان پہ عمل کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی، آپ یہ کہیں کہ آبسٹیکل تھی، ایسی ایک انتظامی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آج الیکشن انعقاد پذیر نہیں ہو سکے۔ آج جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کوئی دیواروں پہ پھلانگ رہے ہیں، کبھی اسکولوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ رونے دھونے سے، چھلانگے مارنے سے، ڈرامے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئیں میدان میں مقابلہ کریں، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں سے اگلا میئر مسلم لیگ نون کا بنے گا اور ڈائریکٹ الیکشن سے بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اپنے خدمت سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ جو فیصلہ ہوگا اسلام آباد کی عوام کا وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ جی پلیز، تھینک یو۔